بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب قسط 111 ملاحظہ فرمائیں۔ اس کے بارے میں کامنی نے بھی بتایا تھا کہ وہ ریسٹورنٹ سے بھی یہی معلوم ہوا تھا کہ ہر گھنٹے 1.5 بعد اس کی کار ریسٹورنٹ کے سامنے اپنے سٹینڈ پر آ جاتی تھی۔ اپنے گھر وہ آج دوپہر کے بعد سے غائب تھا اور کامنی نے بھی اکشان کو دوپہر کے لگ بھگ ہی اس کی کار میں دیکھا تھا۔ میں نے مسٹر لیشی جان کی صورتحال سے آگاہ کیا تو اس کی آنکھوں میں بھی تشویش کی لہریں ابھر آئیں۔ مجبوری ہے، وہ کندھے اچکا کر بولا، کل تک انتظار کرنا پڑے گا۔ میں اپنے کمرے میں آیا تو جانکی اور چیکو سو چکی تھی۔ میں بھی اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ صبح حسب معمول ماسٹر ہینگ بھائی کے ساتھ سیشن شروع ہوا۔ اس نے مجھے چی کی پریکٹس شروع کروا دی تھی۔ شروع میں تو جانکی بھی اس پریکٹس میں شریک تھی، لیکن پھر اس نے ہمت ہار دی۔ چی کی پریکٹس واقعی بہت مشکل تھی۔ سارا کمال سانس کا تھا۔ بعض اوقات اتنی دیر تک سانس روکنا پڑتا کہ پھیپھڑے پھٹتے ہوئے محسوس ہونے لگتے، لیکن میں نے بہرحال یہ پریکٹس جاری رکھی تھی۔ صبح ماسٹر ہینگ بھائی کے ساتھ اس سیشن کے لیے حسب معمول ہم اس غار میں چلے گئے جہاں میری سیزر ہینڈ پریکٹس ہوا کرتی تھی۔ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد ہم کیمپ میں پہنچے تو ایک نئی اطلاع ہماری منتظر تھی۔ یہ اطلاع لانے والا جمنازیم کے ایک شاگرد تھا۔ اس کے کہنے کے مطابق آج صبح 6 بجے وہاں سے تقریباً 4 میل آگے جہاں دریا پہاڑیوں سے نکل کر میدانی علاقے میں داخل ہوتا تھا، ماہی گیروں کو 3 آدمیوں کی لاشیں ملی تھی۔ ایک لاش دریا کے کنارے پر اور 2 لاشیں دوسرے کنارے پر جھاڑیوں میں پھنسی ہوئی ملی تھی۔ ماہی گیروں کے خیال میں ان لاشوں کا تعلق شاولن ٹیمپل کے کسی کیمپ سے ہو سکتا تھا، اس لیے انہوں نے یہاں کی پولیس چوکی کو اس کی اطلاع دے دی تھی اور پولیس ان لاشوں کو اٹھا لائی تھی جو اب بھی پولیس کی چوکی میں رکھی ہوئی تھی۔ میں اور مسٹر لیشی جان فوراً ہی پولیس چوکی پہنچ گئے۔ ہمیں فوراً ہی لاشیں دیکھنے کی اجازت دے دی گئی۔ ان میں ایک لاش تو اس آدمی کی تھی جسے ہم نے دریا میں پھینک دیا تھا، اور باقی لاشیں ان 2 آدمیوں کی تھی جو گزشتہ روز کشتی پر اکشان کے ساتھ فرار ہوئے تھے۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ اکشان ان دونوں آدمیوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے انہیں دریا میں پھینک دیا ہوگا اور خود کنارے پر پہنچ کر مورو تانگ کی کار پر فرار ہو گیا تھا۔ کامنی کے کہنے کے مطابق اس کے ساتھ کوئی اور آدمی بھی تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا اسے اکشان نے دریا پر پیش آنے والے واقعے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا ہوگا۔ اب مجھے مورو تانگ کی زیادہ فکر ہونے لگی تھی۔ بس لیشی جان نے صبح ایک لڑکے کو مورو تانگ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی ذمہ داری سونپ دی تھی۔ پہاڑی غار سے ہماری واپسی اگرچہ 12 بجے کے قریب ہوئی تھی، لیکن وہ لڑکا ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ اس کی واپسی تقریباً 2 بجے کے قریب ہوئی۔ اس سے ملنے والی اطلاع بڑی سنسنی خیز تھی۔ اس کے کہنے کے مطابق وہ پہلے تو شاولن ٹیمپل ہی کے علاقے میں مورو تانگ کو تلاش کرتا اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتا رہا اور پھر شاو یانگ پہنچ گیا۔ مورو تانگ کی کار ایک سڑک پر کھڑی ہوئی مل گئی۔ شاو یانگ میں بھی بہت سے لوگ مورو تانگ کو جانتے تھے۔ پوچھ گچھ کرنے پر معلوم ہوا کہ اس کی گاڑی کل شام سے وہاں کھڑی ہے، لیکن کوئی بھی شخص یہ نہیں بتا سکا کہ وہ گاڑی کب وہاں چھوڑ گیا تھا۔ مورو تانگ کے بارے میں میرے وسوسے اب یقین میں بدلتے جا رہے تھے۔ اکشان کو بھی میں اچھی طرح سمجھ چکا تھا، وہ نہایت کینہ پرور اور گھٹیا آدمی تھا۔ جو شخص ڈاکوؤں کے ایک منظم گروہ میں پھوٹ ڈال کر انہیں آپس میں لڑا کر مروا چکا، اس کے بارے میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس قسم کا آدمی ہوگا۔ وہ جس طرح ہمارے پیچھے پڑا ہوا تھا، اس سے بھی اس کی گندی فطرت کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ اور پھر یہ محض اتفاق تھا کہ شاولن ٹیمپل پہنچتے ہی اس کی ملاقات ٹروڈر جیسے گنڈوں سے ہوئی اور پھر اسے بیگا تیراڈ مل گیا۔ میں اسے اتفاق کہوں یا کچھ اور، لیکن یہ کہاوت بالکل صادق آتی تھی کہ کندم جنس باہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز باواز۔ مجھے زندگی میں اب تک جو بھی لوگ ملے تھے وہ نہایت شریف، سچائی کا ساتھ دینے والے اور کھرے لوگ تھے۔ ان میں پرتاپ سنگھ مہاراج، تھائی وانگ، جانکی، چیکو وغیرہ قابل ذکر تھے، اور اب مجھے ماسٹر ہینگ پائی اور ماسٹر لیشی یان جیسے لوگوں کی سرپرستی حاصل تھی۔ اس کے برعکس دارا کو اس کے کماش کے لوگ ملتے رہتے تھے۔ ٹائیگر، پیڈرو، چیف انگ جیسے بدفطرت گنڈے اور بدماش اس کے حصے میں آئے تھے۔ اور اب اکشان کا قصہ تھا۔ زندگی کے اس مرحلے میں مجھے چیکو جیسی لڑکی ملی تھی جو طوائف تھی اور صرف دولت ہی کو زندگی کا مقصد سمجھتی تھی، لیکن وہ اپنے گھر کو بھول کر محض اس لیے میرا ساتھ دینے پر تیار ہو گئی تھی کہ اگر ڈانگ کا رئیس سیان چانگ اپنی بیوی کارا چان کے قتل میں ہمیں پھنسانے کی کوشش کرے تو وہ ہمارا دفاع کر سکے۔ دوسری طرف اکشان کو میگا جیسا آدمی مل گیا تھا جو میری تلاش میں گولڈن ٹرائی اینگل سے یہاں تک آ گیا تھا۔ اس میں شبہ نہیں کہ اکشان جرائم پیشہ تھا اور بدھ بخشوں کے بیس میں دنیا بھر میں لوگوں کو لوٹتا پھر رہا تھا، اور ہمارے ساتھ تصادم ہونے سے پہلے اس نے کسی سنگین جرم کا ارتکاب نہ کیا ہو اور میں لوٹ مار کی ہو، اور یہ بھی ممکن تھا کہ ہمارے ساتھ تصادم ہونے سے پہلے اس نے کسی قسم کا سنگین جرم کا ارتکاب نہ کیا ہو اور میں لوٹ مار کرتا پھر رہا ہوں، لیکن اب اس کے ہاتھ خون سے رنگے جا چکے تھے۔ ڈاکوؤں کے گروہ میں شامل ہونے سے اس کا حوصلہ اور بڑھ گیا تھا، گویا وہ ایسا بیڑیا بن گیا تھا جس کے منہ کو خون لگ گیا تھا، اور مجھے یقین تھا کہ ڈاکوؤں کے گروہ کو ہمارے فرار کے بعد اس نے آپس میں لڑوا دیا ہوگا۔ جو ایک آدھ زندہ بچا ہوگا اسے اس نے خود موت کے گھاٹ اتار دیا ہوگا، یا اس نے 2 آدمیوں کو دریا میں پھینک دیا تھا جن کی لاشیں ماہی گیروں کو مل گئی تھی، اور مجھے یقین تھا کہ اس نے مورو تانگ کو بھی ختم کر دیا ہوگا تاکہ وہ کسی کو شاو یانگ میں اس کے ٹھکانے کے بارے میں نہ بتا سکے۔ اور میرے خیال میں اکشان آگے چل کر ہمارے لیے اور زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔
मैंने मसर अली जान से अपने खदशात का इजहार किया तो वो बोला, तशवीश तो मुझे भी है। इस किस्म के लोग गोल्डन टेम्पल में आते रहते हैं जो यहाँ का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनका इलाज हो जाता है। वो जर्मन और उसका लंबे बालों वाला साथी, तुमसे 2-3 मरतबा उनका आमना सामना हुआ है। वो दोनों भी उसी की किस्म के आदमी हैं और हमें इनका बंदोबस्त करना पड़ेगा। मुझे डर है कि उसने मोरूतांग को कत्ल कर दिया होगा। मैंने कहा। मास्टर अली यान ने कहा, मैं 2 लड़कों को शाओयांग भेज रहा हूँ ताकि वो मुकम्मल मालूमात हासिल करके आए। फिर 2 लड़कों को उसी रोज शाम से जरा पहले शाओयांग भेज दिया गया। उसी रात मैं और चीकू भी कामनी के साथ चल पड़े थे। जानकी उस रोज कुछ ज्यादा ही थक गई थी, इसलिए वो हमारे साथ नहीं आई थी। शाओलिन टेम्पल के मेन रोड पर हम एक रेस्टोरेंट में बैठ गए। ये रेस्टोरेंट दरअसल पार्क के किनारे पर था। पार्क ज्यादा बड़ा नहीं था। पार्क के तीनों कोनों पर एक एक रेस्टोरेंट था। हम जिस रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे उसकी इमारत सिर्फ 2 कमरों पर मुश्तमिल थी। एक कमरा किचन पर मुश्तमिल था और दूसरा कमरा बड़ा था जिसमें सिर्फ 4-5 मेजें बिछी हुई थी। अलबत्ता इमारत के सामने दोनों तरफ कुशादा फुटपाथ पर दूर तक मेजें कुर्सियां लगी हुई थी। कुछ कुर्सियां पार्क में भी लगी हुई थी। इस वक्त खासी रौनक थी। हम तीनों एक अलग थलग मेज पर बैठ गए। मैंने वेटर को बुलाकर कॉफी का आर्डर दे दिया। कॉफी पीने के बाद भी हम देर तक वहां बैठे बातें करते रहे और फिर हम वहां से उठना ही चाहते थे कि कामनी सड़क के दूसरे फुटपाथ पर एक आदमी को देखकर चौंक गई। उसके चेहरे के तासरात एकदम बदल गए। क्या हुआ? मैंने सवालिया निगाहों से उसे देखा। वो सामने जो आदमी जा रहा है, उसने गर्दन से इशारा करते हुए सरगोशी में कहा, ये वही है जिसे उस रोज मैंने एक्सियान के साथ मोरूतांग की कार में बैठे हुए देखा था। क्या तुम्हें यकीन है कि ये वही आदमी है? मैंने भी चौंक कर उसकी तरफ देखते हुए कहा। वो निकलते हुए कद का सेहतमंद किस्म का आदमी था। उसने जीन्स और टी शर्ट पहन रखी थी। पैरों में जोगर थे। उसकी उम्र 45 के लगभग रही होगी। सर के बाल करीब से तराशे हुए थे। गले में एक लाकड़ भी नजर आ रहा था जो बल्ब की रोशनी में चमक रहा था। अगर वो लैंप पोस्ट के करीब से ना गुजरा होता तो मैं उसके चेहरे को इस तरह नहीं देख सकता था। उसके दाएं कंधे से कपड़े का एक थैला भी लटका हुआ था जिस पर सफेद झालर लगी हुई थी। कामनी, मैंने कुर्सी से उठते हुए कहा, तुम चीकू को अपने साथ ले जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अकेले उसके पीछे जाओगे तो उसे शुबा हो जाएगा, इसलिए हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं, कामनी ने कहा। उसने ठीक ही कहा था, इसलिए मैंने उन दोनों को भी साथ ले लिया। हम तीनों सड़क पार करके दूसरे फुटपाथ पर आ गए। वो शख्स हमसे तकरीबन 20 गज आगे जा चुका था। हमने रफ्तार तेज कर दी और 10 गज का फासला बीच में रखकर मामूली रफ्तार से चलने लगे। सड़क पर कुछ और लोगों की आमदोरफ्त भी थी, इसलिए उस शख्स को ताकुब का शुबा नहीं हुआ। वो एक और सड़क पर मुड़ गया। उस सड़क पर 2-3 जिम्नाजियम थे। एक जिम्नाजियम में बाउट्स हो रहे थे। शोर की आवाजें सुनाई दे रही थी। उस जिम्नाजियम से कुछ आगे जाकर वो एक और सड़क पर मुड़ गया। तकरीबन 50 गज का फासला तय करने के बाद वो एक कुशादा गली में मुड़ गया। इस मर्तबा मैं चौंके बगैर ना रह सका। मेरा ख्याल था कि उसे ताकुब का इल्म हो गया था या उसी तरह मुख्तलिफ सड़कों पर घूमते हुए वो इस अमर की तस्दीक करना चाहता था कि हम वाकई उसका पीछा कर रहे हैं कि ये महज इत्तफाक था। और फिर वो मुख्तलिफ गलियों में घूमता रहा। उस वक्त रात के 11 बजने वाले थे और इन गलियों में सन्नाटा था। अब मुझे यकीन हो गया कि वो हमारे ताकुब से आगाह हो चुका था और अब इन गलियों में घूमकर हमें चकमा देने की कोशिश कर रहा था। वो एक और गली में मुड़ गया। उसके साथ ही मुझे दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो हमसे बचने के लिए भाग खड़ा हुआ था। मैंने चीकू और कामनी को इशारा किया और खुद भी दौड़ लगा दी। उस गली में मुड़ते ही मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। हम आबादी के आखिरी सिरे पर आन पहुंचे थे। ये गली ज्यादा तवील नहीं थी। इसके इख्तिताम पर छोटी छोटी पहाड़ियां शुरू हो जाती थी जो बतदरीज बुलंद होती चली गई थी। मैं समझ गया कि अगर वो इन पहाड़ियों में दाखिल हो गया तो उसे तलाश करना मुश्किल हो जाएगा। वो गली के आखिरी सिरे पर पहुंच चुका था। मैंने अपनी रफ्तार तेज कर दी और जब वो पहाड़ियों में दाखिल हो रहा था तो मैं उसके सर पर पहुंच चुका था। मैंने दूरी से उस पर छलांग लगा दी और उसे साथ लेता हुआ जमीन पर गिरा। नीचे छोटे छोटे पत्थर थे। हम दोनों एक दूसरे को पत्थरों पर रगीदने लगे। उसने मौका पाकर मुझे दूर उछाल दिया। मैं उसके बाद पत्थरों पर गिरा। उसने मुझ पर हमला करने की बजाय एक बार फिर दौड़ लगा दी। मैं समझ गया कि वो मेरा मुकाबला नहीं करना चाहता था बल्कि जान बचाकर भागना चाहता था। मैंने भी उठकर उसके पीछे दौड़ लगा दी और चंद गज के फासले पर उसे जा लिया। हम एक बार फिर गुथमगुथा हो गए। इस मर्तबा मैंने उसे पैरों पर उछाल कर दूर फेंक दिया और फुर्ती से उठ खड़ा हुआ। उसने भी उठने में देर नहीं लगाई। मैं तो स्टांस बनाकर खड़ा हो गया, लेकिन उसका अंदाज कुछ मुख्तलिफ था जिससे मुझे ये अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो मार्शल आर्टिस्ट नहीं था। मुझे उस पर काबू पाने में ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आएगी, लेकिन मैं ये जानता था कि किसी अनाड़ी का कोई वार इतना मुहलक साबित होता है कि अच्छे से अच्छे मार्शल आर्टिस्ट को भी ढेर कर दिया जाता है। इसलिए मुझे ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत थी। वो चांदनी रात थी और हम एक दूसरे को बाखूबी देख सकते थे। मैंने आगे बढ़कर उस पर हमला किया। वो तेजी से झुकाई देकर अपने आप को मेरे पंजे से तो बचा गया, मगर मेरी लेफ्ट साइड किक ने उसे चीखने पर मजबूर कर दिया। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि मैंने उसे एक और किक रसीद कर दी। ये किक उसके घुटने से जरा ऊपर लगी और वो चीखता हुआ पुश्त के बल ढेर हो गया। उसी लम्हे मुझे पत्थरों पर दौड़ने की आवाजें सुनाई दी। वो चीकू और कामनी थी जो दौड़ती हुई पहाड़ियों में पहुंच चुकी थी।
मगर हम उस वक्त तक चटानी पत्थर की आड़ में थे, इसलिए वो हमें नहीं देख सकी थी और शायद इसलिए कामनी ने मेरा नाम लेकर पुकारा था। मैंने मुड़कर देखा, मेरे रीफ ने इस मौके से पूरा फायदा उठाया। उसने बड़ी फुर्ती से उठकर मेरी पिंडली पर ठोकर मार दी। बैग टांग पर नाच कर रह गया। पिंडली की हड्डी पर लगने वाली ठोकर ने मेरी जान निकाल दी। मेरे संभलने से पहले उस शख्स ने मुझ पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। उसके 2 घूंसे मेरे सीने पर लगे और तीसरा जबड़े पर। मेरा दिमाग झुनझुना उठा। वो मार्शल आर्टिस्ट नहीं था, मगर उसमें ताकत थी और स्ट्रीट फाइटिंग के अंदाज में हाथ पैर चलाना भी जानता था। उसे मजीद डील देना मेरे लिए खतरनाक था। मैंने मौका पाते उसकी पिंडली के पिछले हिस्से पर बड़े जोर से राउंड हाउस किक लगाई। इस किक में पैर का अपर टारगेट पर लगता। अगर किक नपी तुली हो तो खंजर के वार से ज्यादा मोहलक साबित होती है। मेरी ये किक उसकी पिंडली के पिछली तरफ गोश्त पर लगी थी। वो चीखता हुआ अपनी जगह से कई फुट ऊपर उछला और दब से नीचे गिरा। उसने बड़ी फुर्ती से उठकर मुझ पर हमला कर दिया। इस मर्तबा उसका हमला करने का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो किसी मेंढे की तरह मेरे पेट में सर से टक्कर मारने के लिए आगे बढ़ा था। मैंने बड़ी फुर्ती से साइड में होकर उसकी गर्दन को अपनी बगल में जकड़ लिया और एक हल्का सा झटका देकर छोड़ दिया। वो पट से नीचे गिरा। उसने दोबारा उठने की कोशिश की मगर कामयाब ना हो सका। खड़ा होते हुए लड़खड़ा कर नीचे गिरा और दोनों हाथों से उसने अपनी टांग को पकड़ लिया जिस पर मेरी किक लगी थी। किक लगने के बाद उसने जोश में मुझ पर दूसरा हमला तो कर दिया था, मगर अब टांग की तकलीफ से बिलबिला उठा था। यकीनन अंदर से गोश्त फट गया था। इस वक्त चीकू और कामनी भी दौड़ती हुई वहां पहुंच गई। वो ठिठक कर दूर ही रुक गई। सूरतेहाल का जायजा लेने में शायद 1 सेकंड उनको लगा होगा। फिर वो तेज कदम उठाती हुई मेरे करीब पहुंच गई। मैंने अपनी बतून का पांचा उठा दिया और पिंडली से बंधा हुआ खंजर निकाल लिया। तुम्हारे साथ लड़ाई में तो कोई मजा नहीं आया, मैंने खंजर उस शख्स के चेहरे के सामने लहराते हुए कहा, लेकिन मुझे जिंदा इंसानों का गोश्त काटने में जो मजा आता है उसका तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। तो तुम कौन हो? वो शख्स अखलाया। मेरे पीछे क्यों पड़ गए और मुझे क्यों मारना चाहते हो? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मुझे जानते ही नहीं। मैंने उसे घूर कर कहा। मैं नहीं जानता तुम कौन हो, वो बोला। तो फिर भागे क्यों थे? मैंने पूछा। मैं समझा तो तुम लोग राज़ान हो, उसने कहते हुए मेरे करीब खड़ी हुई लड़कियों की तरफ देखा। आजकल लड़कियां भी मर्दों के साथ मिलकर राजधानी की वारदातें करती हैं। मेरे थैले में रकम थी, मैं यही समझा था कि तुम लोग मुझे लूटने के लिए मेरे पीछे लगे हो, इसलिए मैं इस तरफ आ गया था। मेरा ख्याल था कि मैं तुम लोगों को चकमा देकर इन पहाड़ियों के पुरपेच रास्तों से वापस चला जाऊंगा। लेकिन मेरा थैला कहाँ है? वो इधर उधर देखने लगा। ये रहा तुम्हारा थैला, मुझे वहां पड़ा हुआ मिला था। मैंने उसे कपड़े का थैला दिखाते हुए एक तरफ इशारा किया। लाओ लाओ, ये मुझे दे दो, ये मेरी जिंदगी भर की कमाई है। उसने हाथ आगे बढ़ा दिया। जिंदगी भर की नहीं, एक रात की कहो, कामनी ने कहते हुए थैले की जिप खोली। उसमें वाकई करेंसी नोट भरे हुए थे। ये झूठ बोलता है, कामनी मेरी तरफ देखते हुए बोली। कल मैंने इसी को इक्शान के साथ मोरूतांग की टैक्सी में बैठे हुए देखा था और कल इसे मोरूतांग लापता है। मुझे शुबा है कि उसे कत्ल कर दिया गया है और कातिल यही है। ये रकम उस कत्ल का मुआवजा है। कोई जिंदगी भर की कमाई इस तरह थैले में लेकर नहीं फिर सकता। तो नहीं, मैंने किसी को कत्ल नहीं किया। वो चीखा। खौफ की शिद्दत से उसका चेहरा बड़ा भयानक हो गया था। वो जिस तरह खौफ से चीखा था, मैं एकदम चौंक गया। उसके थैले में नोटों की मौजूदगी ने भी मुझे शुबे में मुब्तला कर दिया था। और फिर अचानक उसने उठकर भागने की कोशिश की, मगर टांग की तकलीफ की वजह से अगले ही कदम पर ढेर हो गया। मैंने लपक कर खंजर की नोक उसके गले पर रख दी। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि सब कुछ सच सच बता दो। मेरे हल्क से वो राहट निकली। अगर तुमने जबान नहीं खोली तो गला उधेड़ दूंगा तुम्हारा। वो अक्शान, वो मैगा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसके लहजे में बेपनाह खौफ था। यानी तुम्हें उन लोगों का खौफ है जो यहाँ नहीं है, और इस खंजर का कोई खौफ नहीं जिसकी मामूली सी हरकत तुम्हारी जिंदगी का खात्मा कर सकती है। मैंने कहा, सच सच बता दो। अगर तुम बेगुनाह हो तो तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, बल्कि मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। ये ऐसे नहीं बताएगा, कामनी बोली। तुम इसकी बोटियां काटना शुरू कर दो, खुद ही जबान खोलेगा। मैंने खंजर उसके नरखरे से हटाकर गर्दन पर रख दिया और उसकी तेज धार से हल्की सी खराश डाल दी। वो बिलबिला उठा। अब क्या ख्याल है? मैंने कहा। जबान खोलते हुए वाकई बोटियां काटना शुरू कर दो। तो बताता हूँ, कहते उसका हाथ बेइख्तियार अपनी गर्दन पर पहुंच गया। खाल पर बहुत मामूली सा कट लगने से खून रिसने लगा था। हाथ पर खून की चिपचिपाहट महसूस करके वो कांप उठा। मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, मेरे खिलाफ साजिश की गई है, मुझे फंसाया गया है। उस शख्स के कहने के मुताबिक वो मेकांग का रहने वाला था। वो रोजगार की तलाश में ठोकरें खाता हुआ इस तरफ आ निकला था। एक हफ्ता पहले जबकि वो 3 वक्त के फाके से था और भूख से निडाल था, तो उसकी मुलाकात इक्शान से हो गई, जिसने उसे खाना खिलाया और काम दिलाने का वादा भी किया। इक्शान उसे शाओयांग ले गया, जहां मैगा तेराड़ नामी शख्स से उसकी मुलाकात कराई गई। उसे थोड़ी बहुत माली मदद की और काम देने का वादा किया। फिर एक रोज इक्शान मुझे यहाँ ले आया। वो कह रहा था यहाँ आकर मुझे बताया गया कि वो चंद दूसरे आदमियों के साथ मिलकर एक आदमी को अगवा करना चाहता है। उस आदमी को अगवा करके यहाँ लाया जाएगा और यहाँ से मेरी निगरानी में उसे किसी और जगह मुंतकिल कर दिया जाएगा।
मेरा काम सिर्फ ये होगा कि मगवी को बेहोश करके अपने काबू में रखूं। वो लोग उसे गोल्डन ट्राई एंगल ले जाना चाहते थे। मेरे लिए ये पेशकश थी कि अगर मैं चाहूँ तो उनके साथ गोल्डन ट्राई एंगल भी जा सकता हूँ, या चाहूँ तो सरहद पर पहुंचकर मुझे मेरी खिदमत का मुआवजा देकर फारिग कर दिया जाएगा। मैं जराइम पेशा नहीं हूँ। लाइलमी में कभी कोई छोटा मोटा जुर्म सरदर्द हो गया तो कह नहीं सकता, लेकिन दानिशगी में मैंने कभी कोई मामूली सा जुर्म भी नहीं किया। मैं अगरचे समझ गया था कि इक्सियान और मैगा जराइम पेशा हैं, मैं उनके लिए काम नहीं करना चाहता था, मगर मेरी मजबूरी ये थी कि मैं उनका एहसान मान था और मेरे पास कोई काम भी नहीं था। इसलिए मैंने उनकी पेशकश कबूल कर ली। मुझे सिर्फ एक शख्स की निगरानी ही तो करनी थी। इक्सियान कल मुझे एक मकान में छोड़कर चला गया, उसके साथ 3 आदमी और भी थे। इक्सियान की वापसी 3 घंटों बाद हुई। वो अकेला था और जख्मी भी था। मैं समझ गया कि वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके थे। इक्सियान ने बताया कि उसे खंजर का जख्म लगा है और यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, उसे शाओयांग जाना पड़ेगा। इक्सियान के कहने पर मैं मोरुतांग की टैक्सी ले आया और उसे शाओयांग ले गया। रास्ते में मोरुतांग ने कुछ ऐसी बातें की थी जिनसे इक्सियान कुछ परेशान हो गया। शाओयांग में मैगा के मकान पर पहुंचकर इक्सियान ने मोरुतांग को भी अंदर बुला लिया। वो दोनों मोरुतांग को एक अलग कमरे में ले गए। उसके तकरीबन आधे घंटे बाद मुझे उस कमरे में बुलाया गया तो फर्श पर मोरुतांग की लाश देखकर मैं उछल पड़ा। उसे गला घोंटकर हलाक कर दिया गया था। उसकी लाश को ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई। पहले तो मैंने इनकार करना चाहा, मगर मुझे अंदाजा हो गया कि मैं इनके चुंगल में फंस चुका हूँ। मैंने वो लाश मोरुतांग की ही कार की डिक्की में डाल दी और उसे कस्बे की एक सड़क पर छोड़कर वापस आ गया। मैं वहां से भाग जाना चाहता था, लेकिन ये भी जानता था कि उनके हाथ बहुत लंबे हैं। वो लोग मुझे तलाश कर लेंगे और मौत के घाट उतार देंगे। इसलिए मैं उनसे जान छुड़ाने के लिए कोई और हिकमत अमली अपनाने का फैसला करने लगा। कल की रात और आज का पूरा दिन मैंने उन्हीं के साथ शाओयांग के उसी मकान में गुजारा। इसी दौरान में मैंने उन्हें कायल कर लिया कि वो लोग मुझे वहां से जाने दे। मैंने उनसे वादा किया था कि अपनी जबान बंद रखूंगा और यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा। उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर कभी मैंने जबान खोलने की कोशिश की तो वो मुझे भी मोरुतांग के कत्ल में फंसा देंगे। मैगा ने मुझे एक खतीर रकम भी दी और कहा कि मैं रात ही रात में कस्बे से चला जाऊं। मैं शाओयांग से किसी और तरफ जाने की बजाय यहाँ चला आया। यहाँ इक्सियान के मकान में मेरा कुछ सामान पड़ा हुआ था। वो सामान अगरचे ज्यादा कीमती नहीं, लेकिन तुम जानते हो कि बाज़ चीजों से कुछ ऐसा लगाव होता है कि उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। यहाँ एक सड़क पर घूमते हुए मुझे एहसास हुआ कि मेरा पीछा किया जा रहा है और फिर मैंने तुम लोगों को देख लिया। मैं समझा कि तुम लोग मुझे लूटना चाहते हो। मुझे डर था कि अगर मैं सीधा मकान पर चला जाऊं तो तुम लोग भी पीछे आ जाओगे और मैं फंस जाऊंगा। जिन दिनों में यहाँ इक्सियान के पास रह रहा था तो इधर उधर घूमता रहता था। मैंने ये पहाड़ियां भी देखी थी। मैं जानता था कि यहाँ ऐसे रास्ते भी हैं कि ताकुब करने वाले को आसानी से धोखा दिया जा सकता है। इसलिए मैं इस तरफ आ गया था कि तुम लोगों को धोखा देकर अपने मकान की तरफ चला जाऊंगा, मगर तुमने मुझे पकड़ लिया। मैं सच कहता हूँ, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। मैंने कोई जुर्म नहीं किया। मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो। मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा और कभी लौट कर नहीं आऊंगा। वो खामोश हो गया। चांद की मदम सी रोशनी में उसके चेहरे पर खौफ के तासरात बहुत नुमायां नजर आ रहे थे। वो अगरचे खासा जुस्से वाला आदमी था, मगर फितरतन बुज़दिल था। ये कत्ल का मामला है मिस्टर, मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। इक्सियान के हाथ तो बहुत से बेगुनाह लोगों के खून से रंगे हुए हैं। मैं यकीन कर लेता हूँ कि तुम बेगुनाह हो और तुम्हें फंसाने की कोशिश की गई है, मगर तुम इक्सियान और मैगा के खिलाफ बयान तो दे सकते हो। तो तुम्हारा मतलब है पुलिस वो अकला कर रह गया। एक मर्तबा पुलिस के हाथ आ गया तो वो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। तुम जानते हो पुलिस वाले किस तरह काम करते हैं। उन्हें मुजरिम ना मिले तो बेगुनाहों को फांस लिया जाता है। मैगा और इक्सियान बहुत चालाक है। वो तो भाग जाएंगे और मैं फंस जाऊंगा। हम फिलहाल तुम्हें पुलिस के पास नहीं ले जाएंगे, मैंने कहा। हम तुम्हें ऐसी जगह ले जाएंगे जहां ना तो पुलिस तुम तक पहुंच सकती है और ना ही मैगा या इक्सियान तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकते हैं। मैंने चंद ही रोज में अंदाजा लगा लिया है कि मैगा और इक्सियान बहुत हरामी हैं। उन्होंने बड़े बड़े खतरनाक किस्म के आदमी जमा कर रखे हैं। उन्हें पता चल गया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उस शख्स ने कहा, उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। मैंने कहा, वैसे तुम जानते हो कि कल इक्सियान और उसके आदमियों ने जिस शख्स को अगवा करने की कोशिश की थी वो कौन है? नहीं, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, उसने जवाब दिया। वो मुझे अगवा करना चाहते थे, मैंने कहा, लेकिन वो अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो सके और फरार होते हुए इक्सियान ने अपने 3 आदमियों को दरिया में फेंक कर हलाक कर दिया। ओह, उसके चेहरे पर खौफ कुछ और गहरा हो गया था। मैंने कहा ना कि वो बहुत खतरनाक लोग हैं। वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारा वो कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। तुम हमारे साथ चलो, मैंने कहा। मुझे अब उसकी तरफ से कोई खतरा नहीं था। मैंने खंजर अपनी पिंडली पर बंधे हुए चमड़े के फीते में उड़स लिया और उसे हाथ से पकड़कर उठा दिया। टांग पर लगने वाली किक की वजह से उसे चलने में खासी दुश्वारी पेश आ रही थी। हर कदम पर उसके मुंह से कराहें खारिज हो रही थी, मगर मैं उसे सहारा देकर चलाता रहा। हम पहाड़ियों से निकलकर आबादी में आ गए और चंद गलियां घूमने के बाद एक सड़क पर आ गए। इस वक्त 12 बज चुके थे। तकरीबन सन्नाटा था। पीछे से आने वाली एक कार तेजी से हमारे करीब से गुजर गई और आगे जाकर दाईं तरफ मुड़ गई।
میں اس شخص کو بازو سے پکڑے سہارا دے کر چلا رہا تھا۔ وہ لنگڑاتا رہا اور اس کے منہ سے ہلکی ہلکی کراہیں خارج ہو رہی تھی۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ میں نے کک پوری قوت سے نہیں ماری تھی۔ اگر یہ کک پوری قوت سے لگتی تو اس کی ٹانگ کی ہڈی بھی ٹوٹ سکتی تھی۔ ہم اس وقت سڑک کے وسط میں تھے۔ سامنے سے ایک کار آتی ہوئی دکھائی دی۔ یہ کار اس سڑک پر مڑ کر سامنے آئی تھی جس سڑک پر پیچھے سے آنے والی کار مڑ گئی تھی۔ کار بھی سامنے سڑک کے عین بیچ میں آ رہی تھی۔ اچانک چیکو کی چیخ سن کر میں چونک گیا۔ وجدان بچو! میں نے سامنے دیکھا اور میرا دل اچھل کر خلق میں آ گیا۔ سامنے سے آنے والی کار برق رفتاری سے ہمارے اوپر چڑھتی چلی آ رہی تھی۔ چیکو اور کامنی نے فٹ پاتھ کی طرف دوڑ لگا دی۔ میں اس شخص کو اپنے ساتھ کھینچنا چاہتا تھا مگر اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ کار بالکل سر پر پہنچ چکی تھی۔ میں نے اس شخص کو پکڑنے کی کوشش کی، پھر مجھے اپنی جان بچانے کے لیے ایک طرف چھلانگ لگانی پڑی۔ میں اس جگہ سے کئی فٹ دور جا گرا۔ اس کے ساتھ ہی ایک زوردار دھماکہ اور چیخ کی آواز سنائی دی۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے مڑ کر دیکھا اور کانپ کر رہ گیا۔ کار اس شخص کو کچلتی ہوئی نکل گئی تھی۔ خون میں لت پت وہ شخص سڑک پر پڑا پانی سے نکلی ہوئی مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ اس کے جسم کے مختلف حصوں سے بہنے والا خون چاروں طرف پھیل گیا تھا۔ تقریباً 100 گز آگے جا کر وہ کار واپس مڑی۔ میں نے کامنی اور چیکو کے ساتھ ایک طرف چھلانگ لگا دی۔ سڑک کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا پارک تھا جس کی دیوار تقریباً 3 فٹ اونچی تھی۔ اسی وقت فضا تڑتڑاہٹ کی آواز سے گونج اٹھی۔ اگر ہم تینوں دیوار کی آڑ میں نہ گر گئے ہوتے تو چھلنی ہو چکے ہوتے۔ کار گولیاں برساتی ہوئی آگے نکل گئی۔ ہم تینوں اٹھ کر پودوں اور درختوں کی آڑ لیتے ہوئے ایک طرف بھاگ نکلے۔ اب وہاں رکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ کار اگرچہ لوٹ کر نہیں آئی تھی لیکن میں کوئی خطرہ مول لینے کو تیار نہ تھا۔ میں نے چیکو کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ وہ دوڑتے ہوئے بار بار لڑکھڑا رہی تھی۔ کامنی بڑی حوصلہ مند ثابت ہوئی۔ اس نے چیکو کا دوسرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہم مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے رسوں والے پل پر آ گئے۔ اس وقت سامنے سے بھی 2 آدمی پل پر داخل ہوئے تھے۔ وہ تقریباً دوڑتے ہوئے آ رہے تھے۔ میں محتاط ہو گیا اور جیسے وہ قریب پہنچے میرے منہ سے گہرا سانس نکل گیا۔ وہ کوچی اور نکوشی تھے۔ انہوں نے فائرنگ کی آواز سنی تھی اور صورتحال معلوم کرنے کے لیے کیمپ سے نکلے تھے۔ کیا ہوا؟ تم لوگ کہاں غائب تھے؟ اور یہ فائرنگ کی آواز کیسی تھی؟ کوچی نے میرا بازو پکڑتے ہوئے پوچھا۔ یہاں کھڑے کھڑے کچھ نہیں کہہ سکتا، کیمپ میں چلو تفصیل سے بتاؤں گا۔ کوچی اور نکوشی نے دونوں طرف سے چیکو کو تھام لیا۔ میں اور کامنی الگ ہو کر چلنے لگے۔ وہ سمجھے کہ چیکو کو شاید کوئی چوٹ لگی ہے جس سے اس سے چلا نہیں جا رہا، لیکن اب چیکو اپنے آپ پر قابو پا چکی تھی۔ اس نے دونوں طرف سے اپنے آپ کو چھڑا لیا اور آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ کوچی اور نکوشی بھی ہمارے ساتھ ہی کمرے میں آ گئے۔ جانکی سو گئی تھی مگر ہماری آواز سن کر اٹھ گئی۔ اس نے کامنی کو دیکھا تو بے اختیار بول اٹھی، ارے کامنی تم گئی نہیں؟ میں تو جا کر واپس بھی آ گئی، کامنی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم تو شاید ہمارے جانے کے فوراً ہی بعد سو گئی تھی۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میری طبیعت ٹھیک نہیں، مگر تم واپس کیوں آ گئی؟ جانکی بولی۔ ایک غیر معمولی واقعہ پیش آ گیا تھا جس وجہ سے مجھے ان کے ساتھ واپس آنا پڑا، کامنی نے کہا اور پھر اس واقعے کے بارے میں تفصیل سے بتانے لگی۔ کوچی اور نکوشی بھی توجہ سے سن رہے تھے۔ بیچ بیچ میں کچھ لقمے دیتا جا رہا تھا۔ کامنی کے خاموش ہونے پر کوچی بولا، تم لوگوں کو دیر ہوگی تو ہم پریشان ہو گئے تھے۔ ابھی چند منٹ پہلے ہی ماسٹر لی شی یان نے کہا تھا کہ کچھ دیر اور انتظار کرنے کے بعد کسی کو کامنی کے فلیٹ پر بھیجا جائے۔ میں نکوشی کو بھیجنے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ فائرنگ کی آوازیں سنائی دی۔ ہم نے فوراً ہی دوڑ لگا دی۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بولا، صورتحال خاصی سنگین ہے اور میرا خیال ہے ماسٹر لی شی یان کو آگاہ کر دینا چاہیے۔